kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our rhymes and geet book part B for LKG class by Magic Mind, a book of Galaxy Publications. The title of our first rhyme is My School. हमारी पहली राइम का नाम है My School. स्कूल किसे कहते हैं? स्कूल कहते हैं विद्यालय को. A school is a place where we go to learn and study. स्कूल हम जाते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और पढ़ने लिखने के साथ हम बहुत सारे और भी काम करते हैं, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग. तो चलिए पढ़ते हैं अपनी राइम. Every day in hot and cool, I daily go to my school. I study the whole day. In between, I also play. I will study as much I can. I will be a very big man. And I will be a very big man. आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो एक दिन आप क्या बन जाएंगे? बहुत बड़े बिग मैन. So now there is an activity part. Describe the living things made by God. अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें गॉड ने बनाया है. उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स. उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो सांस लेती हैं. तो आपको इन सब चीजों में उन चीजों को टिक करना है जो लिविंग थिंग्स हैं और जिन्हें किसने बनाया है? गॉड ने. तो गॉड ने देखो एनिमल्स और बर्ड्स को बनाया है. फ्रॉग गॉड ने बनाया है, टिक करेंगे. हेन को, काऊ को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गॉड ने बनाई है. नाउ मूव टू नेक्स्ट राइम एंड द टाइटल ऑफ आवर नेक्स्ट राइम इज डीप इन द सीड. डीप इन द सीड. सीड कहते हैं बीज को और डीप कहते हैं गहराई को. डीप इन द सीड इन अ प्लेस सो टाइट there grow a little plant that needs water and light. Let us plant in its soil and nourish with care. Let us give it water and then the rays of sun, and then we have a lovely plant that's grow. एक छोटे से बीज से क्या बनता है? एक सुंदर सा प्लांट. और प्लांट को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सॉइल और रेज ऑफ सन चाहिए. एक प्रॉपर केयर चाहिए. नाउ मूव टू नेक्स्ट राइम एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट राइम इज लिटिल पॉल पैरेट. लिटिल पॉल पैरेट sat in his garret eating toast and tea. Eating toast and tea. And a little brown mouse jumped into the house. And stole it all away. Now there is one more activity part. Color the pictures. अब देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी दो पिक्चर्स हैं. एक स्पैरो की है और एक पैरेट की है. Now what you have to do? You have to color both the pictures. Now the title of our next rhyme is Little Bo Peep. Little Bo Peep has lost her sheep and doesn't know where to find them. Leave them alone and they will come home, wagging their tail behind them. The next rhyme is My Clock. Listen to the big clock. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Look at his hand move. Round and round. Listen to its bell chime. Ding dong ding. Now move to next activity part. What you have to do? Once again, you have to color the given picture. इस बहुत ही सुंदर क्लॉक की पिक्चर में आपको कलर करना है. Color you can choose as per your choice. Now the title of our next rhyme is Three Little Fish. Three little fish playing in a pool
down in the water, down in the water, clear and cool, clear and cool. Up comes a big fish, up comes a big fish. Say, can I play? Says, can I play? But the three little fish swim, swim, swim. But the three little fish swim, swim away. The next rhyme is work while you work. Work while you work. Work while you work. Work while you work. Play while you play. This is the way to be happy and day. One thing at a time. One thing at a time and done well is the best of rule as many can tell. Is the best of rules as many can tell. जब आप खेले तो खेल ही खेलिए, काम कर रहे हैं तो काम ही करिए, एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और ये बात सभी बताते हैं. Now move to next activity part. Tick write the games that you would like. Now there is a picture of some different games. You have to tick write on those picture, on those games which you like to play. आपको जो सा गेम अच्छा लगता है उस गेम पर आप टिक का निशान लगाएंगे. The next rhyme is spring is here. Spring is here. Spring is here. Goodbye snow. Goodbye snow. Flowers grow, birds and bee, leaves on trees. Hello spring, hello spring. Once again we will read. Spring is here, spring is here. Goodbye snow, flowers grow. Goodbye snow, flowers grow. Birds and bee, leaves on trees. Hello spring, hello spring. स्प्रिंग कहते हैं बसंत ऋतु को. जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पर क्या खिल जाते हैं? फूल खिल जाते हैं. जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब किससे भर जाते हैं? पत्तियों से भर जाते हैं. द टाइटल ऑफ आवर नेक्स्ट राइम इज द रेनबो. रेनबो किसे कहते हैं? इंद्रधनुष को. एंड यू नो देयर आर 7 डिफरेंट कलर्स इन रेनबो. समवेयर ओवर द रेनबो, somewhere over the rainbow, way up high, there is a land that I heard of. There is a land that I heard of. Once in Alalo Bay, somewhere over the rainbow, skies are blue. Skies are blue. And the dreams that you dare to dream, and the dreams that you dare to dream really do comes true. Really do comes true. Now one more activity part. Color the picture. Now you have to do different colors in the rainbow. अब आपको रेनबो में, क्लाउड्स में, स्टार्स में क्या करना है? कलर करना है. And you have to do color very neatly and very beautifully. Now the title of our next rhyme is a tisket, a tasket. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket, a brown and yellow basket. I wrote a letter to my friend. I wrote a letter to my friend. On the way I dropped it. On the way I dropped it. I dropped it. I dropped it. Yes, on the way I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little boy picked it up. A little boy picked it up and put it in his pocket. And put in it his pocket. Now the title of our next rhyme is a wise old owl. A wise old owl. A wise old owl lived in an oak. Lived in an oak. The more he saw, less he spoke. Less he spoke. The less he spoke, the more he heard. The less he spoke, the more he heard. Why can't we be? Why can't we be like that the wise old bird? That wise old bird.
Now there is one more coloring part. Now what you have to do? You have to color the owl. अब owl की एक पिक्चर बनी हुई है, आपको इसमें क्या करना है? कलर करना है. Now we will move to next rhyme, and the title of our next rhyme is Good Night. Good night. Good night, sleep tight. Good night, sleep tight. Don't let the bed bug bite. Don't let the bed bug bite. Wake up bright in the morning light. In the morning light, to do what's right. To do what's right with all your might. With all your might. Now the title of our next rhyme is I have a little nose. I have a little nose. I have a little nose. I have a little nose, and I have a little chin, and I have a little chin, and I have a little mouth, and I have a little mouth. Just put my dinner in. Just to put my dinner in. Now there is an activity part, and what you have to do? You have to describe the animals that you would like. अब यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर है, आपको उन्हीं एनिमल्स की पिक्चर पर टिक करना है जो एनिमल्स आपको पसंद है. Now the title of our next rhyme is Bow Wow Wow. Bow Wow Wow. Whose dog are Toe? Whose dog are Toe? Little Tommy Tucker's dirt. Little Tommy Tucker's dirt. Bow Wow Wow. Bow Wow Wow. After reciting the rhymes, now we have to learn one story. अब टाइम है स्टोरी का, and the title of our story is The Thirsty Crow. एक प्यासा कौआ. Once upon a time, in a hot and dry land, there lived a thirsty crow. बहुत समय पहले की बात है, एक सूखी जमीन पर कौन रहता था? एक प्यासा कौआ. The crow flew around searching for water, but everywhere he looked, there was none to be found. वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, लेकिन वो जहाँ भी जाता उसे पानी नहीं मिलता. Finally, the crow spotted a pot with a little water at the bottom. और आखिरकार उसे एक छोटा सा घड़ा मिला जिसमें पानी था, लेकिन पानी बहुत कम था. But the water was too low for him to reach. The crow had an idea. अब पानी इतना नीचे था कि कौआ उसे पी नहीं पाया, तो कौए को एक उपाय सूझा. He picked some small stones and dropped them into the pot, one by one. After dropping many stones, the water went up enough for the crow to drink. उसने क्या किया? बहुत सारे पत्थर के टुकड़े उस घड़े में डाले और उससे क्या हुआ? पानी ऊपर आ गया जिसे वो आसानी से पी सकता था. He drank the water and felt better. The crow learned that even small action can make a big difference. And from the day on, the crow always remembered to use his cleverness to solve problems. तो कौए ने क्या किया? उस पानी को पिया और उसे बहुत अच्छा लगा. तो कौआ समझ गया कि छोटी छोटी कोशिश कर कर हम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं. और उस दिन से ही कौए ने क्या किया? अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने लगा. किस लिए? किसी भी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए. तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश की राइम्स पढ़ने के बाद अब समय है हिंदी के गीत पढ़ने का. आप उसे कविताएं भी कह सकते हैं. तो सबसे पहली कविता का शीर्षक है लड्डू. गोल मटोल मेरा लड्डू, गोल मटोल मेरा लड्डू, मीठा मीठा मेरा लड्डू, खाओ खाओ मिलकर लड्डू, खाओ खाओ मिलकर लड्डू, मुंह में पानी लाए लड्डू, नन्ना नन्ना मेरा लड्डू, गोल गोल मेरा लड्डू. लड्डू कैसा होता है? गोल. हमारी अगली कविता का शीर्षक है दिवाली. दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली, बच्चे आए बड़े भी आए,
बच्चे आए बड़े भी आए, सबने सुंदर दीप जलाए। दीपों से चमका संसार, एक दूजे में बढ़ता प्यार, एक दूजे में बढ़ता प्यार। हमारी अगली कविता का शीर्षक है गोल गोल वह लाल टमाटर। गोल गोल वह लाल टमाटर, होते जिससे गाल टमाटर। खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। स्वस्थ बनाता लाल टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर। हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर। तो चलिए अब समय है रंग भरने का। आपको क्या करना है, नीचे बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, आपको इन सभी चित्रों में बहुत सुंदर से और सफाई से रंग भरना है। हमारी अगली कविता का शीर्षक है मेला। आज घूमने मेला जाओ, आज घूमने मेला जाओ। चाट पकौड़ी लेकर खाओ, खेल खिलौने ठेले पर, खेल खिलौने ठेले पर। चाबी से चलते बंदर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना। कहीं भीड़ में खो मत जाना, कहीं भीड़ में खो मत जाना। मेले में बहुत भीड़ होती है ना, तो जब भी आप मेले में जाएं तो अपने बड़ों का हाथ पकड़ कर चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कविता का शीर्षक है पंखा। सबको पास बुलाता पंखा, सबको पास बुलाता पंखा। ठंडी हवा खिलाता पंखा, मीठी नींद सुलाता पंखा। गर्मी दूर भगाता पंखा, गर्मी दूर भगाता पंखा। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें से आपके पास जो खिलौने हैं उन पर सही का निशान लगाओ। अब देखिए कितने सारे खिलौनों के चित्र हैं, तो इनमें से आपके पास जौन से खिलौने हैं आपको उन पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगली कविता का शीर्षक है कोयल। देखो कोयल काली है, देखो कोयल काली है। इसकी मीठी बोली है, इसकी मीठी बोली है। डाल डाल पर उड़कर गाना, डाल डाल पर उड़कर गाना। इसने हमें सुनाया है, इसने हमें सुनाया है। सबसे मीठे बोले, सबसे मीठे सबसे मीठे बोलो। यह भी हमें सिखाया है, यह भी हमें सिखाया है। कोयल काली होती है लेकिन जो उसकी बोली है वो कैसी होती है, बहुत ही मीठी होती है। तो कोयल हमें सिखाती है कि हमें सबसे कैसा बोलना चाहिए, मीठा मीठा। आगे बढ़ते हैं। अगली कविता का शीर्षक है चंदा मामा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, मुन्ना गया रूठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, जानवरों को उनके घर से मिलाओ। अब जानवर हैं, उनको उनके घर नहीं मिल रहे, आपको क्या करना है, जानवरों को उनके घर से मिलाना है। चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। कुत्ता अपने घर में, किसी से इंग्लिश में कैनल कहते हैं। मछली रहती है पानी में। आगे बढ़ते हैं। अगली कविता का शीर्षक है होली। होली आई, होली आई, धूम मचाती होली आई। रंग गुलाल उड़ाती आई, घर घर में खुशियाँ लाई। बच्चों की टोली आई, बच्चों की टोली आई। हाथ में पिचकारी लाई, हाथ में पिचकारी लाई। आगे बढ़ते हैं और अगली कविता का शीर्षक है चुन्नू मुन्नू थे दो भाई। कौन थे दो भाई, चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई,
झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपत लगाई, दोनों को एक चपत लगाई। कभी न लड़ना झगड़ना, कभी न लड़ना झगड़ना, आपस में तुम मिलकर रहना, आपस में तुम मिलकर रहना। चलिए आगे एक बार फिर समय है रंग भरने का। चित्रों में रंग भरिए। अब देखिए बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, आपको इन सभी चित्रों में अपने पसंद का रंग भरना है। रंग आप बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही सुंदरता के साथ भरेंगे। हमारी अगली कविता का शीर्षक है हाथी राजा। हाथी राजा बहुत बड़े, सोन उठाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, केले गन्ना खा जाओ, मेरे घर भी आ जाओ, केले गन्ना खा जाओ। हाथी आया घर के अंदर, हाथी आया घर के अंदर, आकर बैठा कुर्सी पर, कुर्सी बोली चरमर, हाथी धड़ाम गिरा धरती पर, हाथी धड़ाम गिरा धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कविता का शीर्षक है गोल मोल। सूरज गोल चंदा गोल, सूरज गोल चंदा गोल, अपनी धरती गोल गोल, अपनी धरती गोल गोल, पैसा गोल रुपया गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, आलू गोल टमाटर गोल, सेब संतरा चीकू गोल। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सब्जियों के चित्र दिए हुए हैं, आपको इन चित्रों के अनुसार उनमें रंग भरना है। गोभी में हरा रंग भरेंगे, गाजर में नारंगी रंग भरेंगे, टमाटर में लाल रंग भरेंगे। तो दिए हुए चित्रों को उनके रंग के अनुसार आपको रंग भरना है। आगे बढ़ते हैं और अगली कविता का शीर्षक है ईश्वर। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो इस सुंदर संसार को किसने बनाया है? ईश्वर ने। आगे बढ़ते हैं और अगली कविता का शीर्षक है गर्मी की छुट्टियां। आराम करेगी किताब कॉपियाँ, आराम करेंगी किताब कॉपियाँ, जब आएंगी गर्मी की छुट्टियाँ, रोज पार्क में सैर करेंगे, रोज पार्क में सैर करेंगे, घर के अंदर भी खेला करेंगे, घर के अंदर भी खेला करेंगे, कैंपा आइसक्रीम और कुल्फी, मस्ती भरी ये गर्मी की छुट्टी, खूब खेलेंगे डंडा और गिल्ली, जब आएगी गर्मी की छुट्टी। जब गर्मी की छुट्टी आती है तो आप सब भी ऐसे ही करते हैं ना, कोई पढ़ाई नहीं करता, सब खेलते हैं, लेकिन गलत बात है, हमें खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन वस्तुओं पर सही का निशान लगाओ जो आपको पढ़ने में सहायता करती है। तो चलिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, निशान लगाते हैं जो पढ़ने में हमारी सहायता करती हैं। तो देखिए किताब हमारी सहायता करती है, कैंची का भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई में, बाकी का आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली कविता का शीर्षक है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, दिन भर करती मनमानी, फुदक फुदक कर गाती है, फुदक फुदक कर गाती है, दाना चुनकर खाती है। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, दिन भर करती है मनमानी, फुदक फुदक कर गाती है, दाना चुनकर खाती है। आगे बढ़ते हैं और अगली कविता का शीर्षक है आम रसीला। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है,
फलों का राजा कौन है? आम। और आपको पता है हमारा राष्ट्रीय फल भी आम है। आगे बढ़ते हैं, जानवरों को उनके भोजन से मिलाओ। अब जानवरों को उनके भोजन से मिलाना है। कुत्ते को हड्डी पसंद है, मछली को कीड़े मकोड़े, भालू मछली को खाता है, घोड़ा घास को खाता है, मधुमक्खी शहद को खाती है, शहद देती भी है, और बंदर केला खाता है। चलिए, कविता तो हमने पढ़ ली, अब समय है कहानी पढ़ने का। और हमारी कहानी का शीर्षक है चूहे और शेर की दोस्ती। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। कौन रहता था? चूहा। एक दिन जब वो अपनी बिल की तरफ लौट रहा था, बिल क्या है? चूहे का घर, तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई, क्योंकि चूहा बहुत शरारती होता है। उसने चूहे को अपने नुकीले पिंजे में दबोच लिया। किस में दबोच लिया? अपने नुकीले पंजों में। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो चूहा बुरी तरह डर गया। वो डर गया क्योंकि शेर ने उसे पकड़ लिया था, और रो रो कर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो। अगर आप आज मुझे जाने दोगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपकी मदद करूँगा। किसने कहा? चूहे ने। किससे? शेर से। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम खुद तो इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे? क्योंकि शेर बड़ा होता है और चूहा छोटा सा। चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। कौन फंस गया? शेर। शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन निकाल नहीं पाया। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था। कहाँ से? जहाँ पर जाल में शेर फंसा था। कि उसने शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनी। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। किसने? चूहे ने। और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आज़ाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। देखिए, चूहा छोटा सा होता है, लेकिन उसने इतने बड़े जंगल के राजा की क्या करी? मदद करी। तो हमें कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने आपको जो भी कविताएं पढ़ाई, कहानी सुनाई, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।